Uh, I'd like to welcome on this occasion to our Honorable Vice Chancellor and our guest and my very good friend, Dr. Dinesh T. Bhosle. Today, Dr. Bhosle is going to deliver his talk on opportunities for veterinary students in private sector and how to become entrepreneur. Before we start the talk, I would like to introduce our guest today, Dr. Dinesh T. Bhosle. As during my conversation, as you came to know that Dr. Bhosle was my senior at IBRI, and we are living in same hostel also in the year I'm talking about 1995. Dr. Bhosle is a member of Extension Council and Research Council of MAPSU Nagpur, and he hold various prestigious positions of Animal Nutrition Society of the India. He is also member of Management Committee of ICR NIANP Bangalore and Vice President of Poultry Federation of India. He is a former chairman CLAFMA of India, and currently Dr. Bhosle is Regional Sales Director South Asia for AV Vista, which is a British company. Dr. Bhosle has delivered more than 1,200 lectures for the farmers, entrepreneurs, for veterinarians. So without taking much time, now I'd like to request Dr. Bhosle. I welcome again Dr. Bhosle, and I'd like to request Dr. Bhosle to kindly start your talk. Dr. Bhosle, please. Thank you, Dr. Saab. Let me thank your Honorable Vice Chancellor, sir, and your Honorable Dean, Dr. J.K. Prasad, for giving me this opportunity to interact with faculty members and students of Bihar Animal Science University. Every year, I try to visit at least 10 veterinary colleges, and I talk about what are the potential for veterinary students in private sector and how they can become entrepreneur. I have prepared write-up also. I will email that write-up to Dr. J.K. Prasad, and he can share that write-up with you. I don't believe in PowerPoint presentation. I believe in powerful presentation. Yeah. So I have prepared a Word document which I will email to all of you. हिंदी कंफर्टेबल है कि इंग्लिश कंफर्टेबल है? Both are comfortable. नहीं सर, हिंदी. Both are comfortable, but Hindi are more comfortable. ठीक है. हिंदुस्तानी में बात करते हो, इंग्लिश हिंदी उर्दू मिला के चलता है, उस तरह बात करनी. ठीक है. एवरीवन. जैसे सिंह सर कह रहे हैं, 92 में जब मैंने मास्टर डिग्री में IVRI में एडमिशन लिया था, सिंह सर ने हमें पढ़ाया था, तो तब से सिंह सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है. और जैसे डॉक्टर J.K. प्रसाद ने बताया कि 93 में उन्होंने IVRI में एडमिशन ली थी. पिछले 27 साल से मैं उनको भी जान रहा हूँ. सिंह सर वाइस चांसलर होने के बाद में 2 बार मुझे आपके यूनिवर्सिटी आने का मौका मिला. एक बार मैं कमिटी में आया था, और दूसरी बार जब एनिमल न्यूट्रिशन की कॉन्फ्रेंस थी 1.5 साल पहले, तब मैं आपके यूनिवर्सिटी में आया था. मेरे जो ईस्ट इंडिया के सेल्स मैनेजर है डॉक्टर अमित रंजन, जिन्होंने PhD एनिमल न्यूट्रिशन में की हुई है, वो भी पटना में रहते हैं. मुझे स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन करना हमेशा अच्छा लगता है. आप सब लोगों ने चेतन भगत का नाम जरूर सुना होगा. चेतन भगत ये बहुत अच्छे ऑथर है. इन्होंने फॉरेन बैंक में काम करने के बाद फुल टाइम ऑथर बनने का डिसाइड किया. अब वो सिंगापुर में रहते हैं, हाउस हस्बैंड है, किताबें लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखते हैं. तो मुझे याद है लास्ट ईयर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, हाउ टू सॉल्व इंडियाज जॉब क्राइसिस इन 3 स्टेप्स. दिस आर्टिकल वाज प्रिंटेड इन इकोनॉमिक टाइम्स. तो उन्होंने कहा था कि राफेल जैसे एरोप्लेन
तो हिंदुस्तान नहीं बना सकता, लेकिन गुड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स हिंदुस्तान जरूर बना सकता है। उन्होंने कहा था उस आर्टिकल में कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोसेसिंग के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा जीडीपी 2% से बढ़ सकता है। देखिए ये बात सच भी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि 2022 तक हमारे फार्मर का इनकम डबल होना चाहिए। ये इनकम डबल करने में एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। Therefore, I would like to assure you all students that you have chosen right profession. अभी भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो कि मैंने वेटनरी क्यों चूज किया था, तो वो कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज रात को सोने के पहले आपने खुद को कुछ प्रश्न पूछना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न, मैंने वेटनरी में एडमिशन क्यों लिया और अब मैं क्या करना चाहता हूं। आप में से कुछ स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, कुछ इंटर्नशिप में है, कुछ मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या आप प्राइवेट जॉब में आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आईएएस, आईपीएस ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी वेटनरी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। आपका बिहार गवर्नमेंट का पशुपालन विभाग है जहां पे आपको जॉब मिल सकती है। नाबार्ड और बहुत सारी बैंक्स है जिनको आप में जॉब मिल सकता है। आप आईसीआर में साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। आप बासु जैसे स्टेट वेटरनरी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प में एज अ वेटरनरियन ज्वाइन कर सकते हैं। आप डीआरडीओ जैसे R&D इंस्टीट्यूट में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अब जब कोविड-19 का हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो जल्द से जल्द और लो कॉस्ट वेंटिलेटर कैसे बनाया जाए, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे डीआरडीओ ने डेवलप की और वो टेक्नोलॉजी लेके आज महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे कार मैन्युफैक्चरर अब इस वेंटिलेटर को बना रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आना है तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप पोल्ट्री सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेयरी सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एक्वाकल्चर सेक्टर, एनिमल फीड सेक्टर, एनिमल फीड सप्लीमेंट, एनिमल हेल्थ सेक्टर। आप पेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इक्वाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्मॉल रूमिनेंट्स एक सनराइज सेक्टर है। मीट प्रोसेसिंग सेक्टर आने वाले 10 साल में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। और अगर आप हिंदुस्तान में काम करना चाहते हो तो यही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि सिर्फ बीबीएससी करके आप जॉब मत ढूंढिए। अगर पॉसिबल है तो मास्टर डिग्री कीजिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आना है तो आप एमबीए कीजिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आना है तो कौन से सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री करनी चाहिए। एनिमल न्यूट्रिशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पोल्ट्री साइंस, एलपीएम, एलपीटी, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एक्सटेंशन, फार्मेकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में
आपको जॉब मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सिर्फ वेटरनरी की डिग्री या वेटरनरी का नॉलेज काफी नहीं है, इसके साथ में हमारे सॉफ्ट स्किल इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज इंग्लिश फ्लुएंसी। इंग्लिश इज बिजनेस लैंग्वेज in our country. Computer fluency is also very important. Third important soft skill is people management. हम वेटनरियन जानवरों की ट्रीटमेंट तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन पीपल मैनेजमेंट में हम बड़े वीक होते हैं। हमें ये सीखना पड़ेगा। देखिए, सिर के ऊपर बर्फ रखनी है और मुंह में शक्कर रखनी है, जिंदगी में याद रखो। आप जब मीठी बात करोगे तब आपका सब सुनेंगे, आपके सब काम होंगे। दूसरों को मदद कीजिए, आपको मदद जब चाहिए तब जरूर मिलेगी। पीपल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत हेल्प की हुई है, हमारे जूनियर्स ने हमें बहुत हेल्प की हुई है। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू ऑल आवर सीनियर्स एंड जूनियर्स इन आवर वेटरनरी फील्ड। इनोवेटिवनेस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ नया करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं 2020 शुरू क्या हो गया, हमारे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने कोविड-19 जैसा नया चैलेंज आ गया। किसी ने सोचा था फरवरी महीने में कि मार्च अप्रैल में पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा? 167 ईयर के हिस्ट्री में रेलवे पहली बार बंद हुई, सारे विमान प्लेन्स बंद हो गए, सब लोग घर से काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन कौन सा है ये सब लोगों को पता चला, और वो प्रोफेशन है एग्रीकल्चर, फार्मिंग प्रोफेशन, एनिमल हस्बेंड्री। परसों पंचायती राज दिन पे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सरपंचों के साथ में संवाद किया, तब उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का स्पेशल मेंशन किया। इसीलिए इनोवेटिवनेस बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, हम लोग पॉलिसी मेकिंग में बहुत वीक होते हैं। हमें राइटिंग स्किल्स हमारे इंप्रूव करने पड़ेंगे, हमारे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करने पड़ेंगे। आप हिंदुस्तान में काम कीजिए या हिंदुस्तान के बाहर जाके काम कीजिए, कम से कम 1 या 2 फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। duolingo.com, मैं काफी सारे वेबसाइट के नाम आपको बता रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। duolingo.com नाम की एक वेबसाइट है जिसमें आप फ्री में कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, और इसका फायदा आपको जरूर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल जो वेटरनरी के लिए जरूरी है वो है सोशल अवेयरनेस। हर वेटरनरियन को हॉबीज भी होना बहुत जरूरी है। तो और एक बात सुनिए, आप अपना वेटरनरी का पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जब मैं आईवीआरएम में सीखता था तो काफी समय मैंने लाइब्रेरी में बिताया। तो आजकल कुछ हार्ड कॉपीज भी मिलती है मैगजीन की, और इंटरनेट पे काफी सारे मैगजीन्स फ्री है, काफी सारे ई न्यूज़लेटर जो है वो फ्री है। एग्जाम्पल, आप एक एसआर पब्लिकेशंस नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आप हर महीने में 2 मैगजीन पढ़ सकते हैं। एक मैगजीन है पोल्ट्री टेक्नोलॉजी और दूसरा मैगजीन है लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी। इंडियन डेयरी एसोसिएशन जो है उनका भी डेयरी मैन नाम का मैगजीन आपके लाइब्रेरी में आता होगा। मैं प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि पोल्ट्री के सारे मैगजीन बासु को फ्री मिल सकते हैं। आप सारे मैगजीन्स को लिखिए, 10 मैगजीन है पोल्ट्री के, वैसे लाइवस्टॉक के 2-3 मैगजीन है, वैसे एक्वाकल्चर के 2-3 मंथली मैगजीन आते हैं। इनके सबके एड्रेसेस मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आप इनको लिखिएगा, ये फ्री में आपको देंगे। आप इंटरनेट पे जाके ऑल अबाउट फीड, फीड इंटरनेशनल,
पोल्ट्री इंटरनेशनल, पोल्ट्री वर्ल्ड, एशियन पोल्ट्री, एशियन फीड स्टफ्स जैसे मैगजीन और उनकी ई न्यूज़लेटर आप फ्री में ले सकते हैं। आप सब लोगों ने डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर का नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। इनका mashelkar.com करके वेबसाइट है। ये CSIR के डीजी थे। कुछ समय के लिए ये ICAR के भी डीजी रहे। और इनका अभी एक लेटेस्ट किताब आई हुई है, लीप फ्रॉगिंग टू पोल वॉल्टिंग। आप YouTube के ऊपर माशेलकर सर के बहुत वीडियोस है, या आप mashelkar.com वेबसाइट पे जाएंगे तो काफी सारे उनके स्पीचेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो खुद को डेंजरस ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और सारे वेटरनरी स्टूडेंट्स जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, हम सबको डेंजरस ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। इस देश को आगे लेके जाना है, हमारे किसानों को आगे लेके जाना है, हमारे किसानों की आय बढ़ानी होगी, तो हमें डेंजरसली ऑप्टिमिस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम निकालिए। आज भी दिन में 2 से 3 घंटा मैं पढ़ता हूं। एक बुकलेट नाम का ऐप है, BOOKLET, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको बहुत सारे अच्छी किताबों की समरी 15 मिनट में मिल जाएगी। इसके अलावा ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी नाम की किताब है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की एक किताब है, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की किताब है, गुड टू ग्रेट नाम की किताब है, एग्जीक्यूशन नाम की किताब है। ये सारे किताबों के बारे में आप समरी फ्री में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में कुछ ऑडियो बुक्स फ्री में भी अवेलेबल है, तो हर चीज खरीदनी नहीं पड़ती। मैं हमेशा वेटरनरियंस को कहता हूं कि आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, आप खुद एंटरप्रेन्योर बनिए और बाकी लोगों को जॉब दीजिए। बिहार तो सुजलाम सुफलाम स्टेट है। नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार से आते हैं। तो इंटेलेक्चुअल पावर जो बिहार के अंदर है वो बहुत कम स्टेट में है। तो मेरा आप सारे वेटरनरी स्टूडेंट्स से कहना है कि आप में से अगर कुछ स्टूडेंट डिसाइड करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और एक मिलकर काम कीजिए, आप 3-4 दोस्त लोग मिलकर काम कीजिए, आप सीनियर जूनियर की टीम बनाइए, आप उसमें फैकल्टी मेंबर का भी एडवाइस लीजिए, उनको भी आपके टीम में रखिए। देखिए, आप अगर एंटरप्रेन्योर बनोगे तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के आंखों में हीरो बनोगे, आप आपके चीफ मिनिस्टर के आंखों में हीरो बनोगे। क्योंकि जॉब एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये आने वाले 2 साल में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे कंट्री के सामने होने वाला है। आज जैसे आप देख रहे हैं कि लाइफ या लाइवलीहुड, ये चैलेंज हमारे देश के सामने है। 3.5 लाख माइग्रेंट लोग जो बाकी स्टेट से महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, अब महाराष्ट्र उनको सबको वापस भेज रहा है। कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। अब ये सारे लोग जो गांव में वापस जा रहे हैं, इनको जॉब चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री इनके लिए बहुत अच्छा जॉब हो सकता है, और इसमें सबसे बढ़िया इनको मदद आप जैसे वेटरनरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे ICAR इंस्टीट्यूट ने, IVRI है, NDRI है, इन्होंने स्टार्टअप कंपनी कैसे शुरू करनी चाहिए इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया हुआ है। रामेश्वर सिंह सर का दोनों जगह सर ने काम किया हुआ है, IVRI में भी काम किया हुआ है, NDRI में भी काम किया हुआ है। आप इन इंक्यूबेशन सेंटर के जो वहां के एक्सपर्ट्स है, उनका लेक्चर आपके स्टूडेंट के लिए यहाँ रखिए जूम के थ्रू, ताकि स्टार्टअप कंपनी कैसे शुरू की जाए, क्या स्कोप है,
इसके बारे में गवर्नमेंट कितना फंडिंग दे सकता है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं काफी सारे स्टार्टअप कंपनी को हेल्प कर रहा हूँ। जैसे ओडिशा में एक जू फ्रेश नाम की स्टार्टअप कंपनी है जो किसान से फिश, चिकन, मटन, अंडा खरीद के कंज्यूमर को बेचती है। आईटी इंडस्ट्री का जॉब छोड़ के एक बंदे ने हम्पी A2 नाम की कंपनी शुरू की। वो देसी गाय का दूध 100 रुपए लीटर में बेचता है। किसान उनसे दूध खरीदता है और आगे कंज्यूमर को होम डिलीवरी देता है। एक संजय भट्टाचार्य जी नाम के बैंक में काम किया हुआ एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना जॉब छोड़ के अब इन्होंने डेयरी फार्मर को ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, इसका टेप्लू नाम की कंपनी बनाई हुई है। और एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है महाराष्ट्र में, जिनको मैं हेल्प कर रहा हूं। उन्होंने गोट फार्म शुरू किया और गोट मटन से उन्होंने पिकल बनाया, अचार बनाया। आपको सबको पता है कि मटन तो 600 रुपए किलो बिकता है, लेकिन अचार वो 1500 रुपए किलो में बेच रहे। एक शेकरू नाम का ऐप है महाराष्ट्र में, जिसमें फार्मर के लिए बहुत सारे लेक्चर्स मराठी में ऑडियो क्लिप उसमें डाली हुई है। तो ऐसा बासु ये कर सकती है कि एक ऐप बना के उसमें किसानों के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसकी ऑडियो क्लिप डाल सकती है। स्टेलैप नाम की कंपनी है, इंदौर के पास में एक दीपक पाटीदार है, goatwala.com करके वेबसाइट देखिए आप। वो गोट फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। बहुत अच्छा गोट फार्म उन्होंने बनाया हुआ है। एक एनडीआरआई के ग्रेजुएट है संजीव कुमार, इन्होंने गोट ट्रस्ट नाम की लखनऊ में एक संस्था शुरू की है और पूरे हिंदुस्तान में वो गोट फार्मर को हेल्प करती है। देखिए, गोट मिल्क का उपयोग साबुन बनाने में हो सकता है, क्योंकि स्किन केयर में गोट मिल्क बहुत अच्छी चीज है। एक बैंकर अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान में वापस आया और कर्नाटका में फीडिटास गोट फार्म चालू किया। फार्मर से 120 रुपए लीटर में दूध खरीदता है और 200 रुपए लीटर में गोट का मिल्क वो बेंगलोर में बेचता है। पावर गोठा, हर्डमैन, ये आप गूगल पे देखिए। ये जो सब नाम मैं बता रहा हूं, इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको गूगल से मिलेगी। देखिए, पोल्ट्री फार्मर क्यों आगे गया? क्योंकि वो रिकॉर्ड कीपिंग करता है। डेयरी फार्मर, गोट फार्मर, फिश फार्मर क्यों पीछे रह गया? क्योंकि वो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता। हर्डमैन है, पावर गोठा है, ये रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। ओडिशा में एक मिल्क मंत्रा नाम की कंपनी है जो किसानों से दूध इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके ब्रांड करके बेचती है। स्टार्टअप कंपनी के लिए पैसा लगता है, कुछ फंडिंग गवर्नमेंट भी करती है। ओमनीवर, इंडीग्राम, व्हीलग्रो नाम की कुछ प्राइवेट फंड एजेंसी है, ये लोग भी स्टार्टअप कंपनियों को हेल्प करते हैं। देखिए, एज अ वेटरनरी सर आप क्वेश्चन, हेलो क्वेश्चन बाद में लेंगे, क्वेश्चन बाद में लेंगे। आप क्वेश्चन लिख के भेजिए मुझे, ठीक है? नोट करके रखिए क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि बेसिक क्या है, अभी पहली सारी बात रख लेता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, एज अ वेटरनरियन यू आर द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म। आप लोग एनिमल फीड, सर मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो चैट में लिख दें। चैट खोल के चैट में क्वेश्चन डाल के रख देंगे तो सारे क्वेश्चन चैट में मिल जाए एक जगह। ठीक है, ऐसा करने से अच्छा रहेगा, क्वेश्चन कंपाइल हो जाएंगे और मल्टीपल क्वेश्चन होगा तो भी कोई बात नहीं, वो देख भी सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं, थैंक यू सर। जैसे मैं बता रहा था कि एज ए वेटरनरियन आप पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं, आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, एनिमल फीड बनाने की कंपनी शुरू कर सकते हैं, एनिमल फीड सप्लीमेंट बनाने की कंपनी शुरू कर सकते हैं। आप
पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, गोट फार्म की ट्रेनिंग देने की कंपनी शुरू कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ली, बहुत सारे लोगों ने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ली, लेकिन आगे ये फार्म सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आगे उनका काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उनके पास अच्छे क्वालिटी के जानवर नहीं है। तो एज ए वेटरनरियन आप एनिमल ब्रीडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लोगों को अच्छे क्वालिटी के एनिमल मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी का फीड मिलेगा, अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, अच्छा एनिमल फीड सप्लीमेंट मिलेंगे, तो उनका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा। देसी मुर्गी के अंडे, इसके लिए भी काफी अच्छा स्कोप है, तो इसका भी ब्रीडिंग फार्म आप चालू कर सकते हैं। देखिए, फार्मर तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन एज ए वेटरनरियन आप सप्लाई चेन कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि फार्मर को मार्केटिंग करने नहीं आता, तो आप सप्लाई चेन कंपनी बना के फार्मर से प्रोडक्ट लेके उसको प्रोसेस करके ब्रांड करके आगे बेच सकते हैं। अभी कोरोना के चैलेंज में हमने देखा कि काफी सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फ्रूट वेजिटेबल सोसाइटी लेवल पे लाके बेच रहे हैं, लेकिन चिकन नहीं आ रहा है, अंडे नहीं आ पा रहे, दूध और दूध के प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन फिश नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये लाइव बिकता था, इसका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसका ब्रांडिंग नहीं हो रहा है, इसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसकी सप्लाई चेन हमें आने वाले समय में बनानी पड़ेगी। देखिए, फार्मर को सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो मैं वेटरनरियंस को कहूंगा कि आप इन स्कीमों के बारे में पढ़िए और ये स्कीम फार्मर कैसे यूज कर सकता है इसके बारे में आप फार्मर को जरूर बताइए। बिहार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लेयर फार्मिंग का प्रमोशन करने के लिए, डेयरी फार्म का प्रमोशन करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स बनाई हुई है और इन स्कीम का इफेक्ट भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी लेयर फार्म्स पिछले 2-3 साल में बढ़े हुए हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन का भी बिहार में अच्छा स्कोप है। सेकंड व्हाइट रिवॉल्यूशन कहाँ आएगी, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ आएगी? आपके बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, इसी पार्ट में आएगी, क्योंकि इसी पार्ट में पानी है। देखिए, हमारा एक्सपोर्ट बड़ा कम है। आप अपीडा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि हिंदुस्तान से कौन से एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का वेबसाइट देखिए, आप नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का वेबसाइट देखिए, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का वेबसाइट देखिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के काफी सारे स्कीम्स है, वो ग्रांट भी देती है और सॉफ्ट लोन भी देती है, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के लिए देती है, रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदने के लिए देती है, प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने के लिए देती है, क्योंकि आने वाले समय में प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस ये बढ़ने वाला है। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को एनकरेज करना चाहूंगा कि एबी विस्ता, गोदरेज एग्रोवेट, सगुना, वेंकीज, अवंती फीड्स, सीपी, कारगिल, अमूल डेयरी, चितले डेयरी, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनके भी वेबसाइट देखिए। ये वेबसाइट देखने से आपको पता चलेगा कि ये कंपनियां कैसे काम करती है, इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी मदद, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको इसकी मदद होगी। जैसे मैंने बीच में कहा था कि स्टूडेंट ने एमबीए जरूर करना है, तो IIM अहमदाबाद है, मैनेज नाम की संस्था है, नियम नाम की संस्था है, काफी सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। तो ऐसे कोर्स में आप जाएंगे तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने के लिए काफी हेल्प हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है और ये सीखना बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट के छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, आप आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, और जैसे मैंने कहा कि आपके फैकल्टी मेंबर का भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। एक सेठ गोडिन नाम का मार्केटिंग का गुरु है, उसका फ्री डेली ब्लॉग ईमेल पे आता है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 3 फेसबुक में एक ग्रुप शुरू किया हुआ है, नेटवर्क ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया, नापी, NAAPI। आप उसमें भी ज्वाइन कीजिए, काफी अच्छे इंफॉर्मेशन आपको डे टू डे बेसिस पे मिलेगी। क्योंकि ध्यान रखिए,
कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, यही आपके ब्राइट फ्यूचर की चाबी है। देखिए फार्मर आपको पूछ रहा है कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, फार्मर बासु से पूछ रहा है कि नई टेक्नोलॉजी क्या है। लेबर प्रॉब्लम सब जगह बढ़ रहे हैं, मैकेनाइजेशन सब जगह बढ़ेगा, ऑटोमेशन सब जगह बढ़ेगा, तो हमें इंजीनियर के साथ काम करना पड़ेगा। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी। जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग बिहार में मैप कर सकते हैं कि कहाँ अच्छे जानवर है, कहाँ अच्छे नस्ल के जानवर है, कहाँ अच्छे बुल्स है, कहाँ पोल्ट्री फार्म्स है, कहाँ डेयरी फार्म्स है। इसके लिए आप जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करके आप यूनिवर्सिटी लेवल पे मैप बना सकते हैं। आप हर डिस्ट्रिक्ट में कितना फॉडर है, कितने एनिमल है, फॉडर डेफिसिट है कि एक्सेस में है, इसका भी मैपिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी, जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज करके आप कर सकते हैं। आजकल फार्मर के पास में स्मार्ट मोबाइल फोन आ गया है। आईवीआरए ने भी काफी सारे ऐप बनाए हुए हैं, एनडीआरए ने काफी ऐप बनाए हुए हैं, लेकिन इन ऐप को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फार्मर को, तभी फार्मर इनको यूज कर सकेंगे। ऑडियो बुक्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये भी अच्छा एक बिजनेस है, या फिर बासु भी कर सकती है इसको, ताकि फार्मर के लिए ऑडियो बुक्स कोई भी लेक्चर 15 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि स्पेसिफिक टॉपिक पे हो और उसमें रिपीटेशन ना हो, जो टॉपिक है उसी के बारे में बात की जाए। ऐसे 15-15 मिनट का लेक्चर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करेगा तो कम से कम 200 स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो 200 टॉपिक पे आपका बढ़िया ऑडियो बुक्स तैयार हो जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्काई इज नॉट द लिमिट। एक इंग्लिश में कहावत है कि स्काई इज द लिमिट, मैं उल्टा कहता हूँ कि स्काई इज नॉट द लिमिट। हम जब वेटरनरी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है, हमें स्कोप ही स्कोप है, लेकिन क्या करना है इसकी क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए। ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसके अंदर माइंड है कि यहाँ माइंड है पता नहीं, लेकिन जो हमारा माइंड है ये हमें छोटा बनाता है, तो हमारा माइंड सेट चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। और मेरी आप सब लोगों को यही फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छे वाइस चांसलर के साथ आपको मिले हुए हैं, अच्छी फैकल्टी मेंबर आपके साथ है जो आपको हेल्प करेंगे। मेरे जैसे एक्सपर्ट भी जब जरूरत होगी तो जरूर हेल्प करेंगे। अभी सर आप भी कमेंट दे सकते हैं, और मैं देखता हूँ कि चैट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। थैंक यू दिनेश। और अभी एक ही क्वेश्चन है जो देख पा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग फंडिंग। जो फंडिंग जल्दी नहीं मिल पाती है और फंडिंग में शेयर मांगते हैं लोग ज्यादा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली अगर आप नाबार्ड के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे मॉडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। यानी अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं, पिग फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो नाबार्ड के वेबसाइट पे बैंकेबल मॉडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो ऐसा मॉडल प्रोजेक्ट बना के अगर आप बैंक को सबमिट करोगे तो आपको फंडिंग जरूर मिलेगी। जनरली 70% फंडिंग ये बैंक से मिलती है, 30% फंडिंग जो है वो खुद को लगानी पड़ती है। स्टार्टअप कल्चर इसलिए शुरू हुआ है। स्टार्टअप में एडवांटेज क्या है कि आप यंग है, आपके पास आइडिया है, लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है। तो जैसे अभी आईवेरा की भी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है इंक्यूबेशन के लिए, तो आईवेरा 8 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेती है, उसमें स्टार्टअप के बारे में पूरी ट्रेनिंग देती है, और जो अच्छे स्टार्टअप है उनको 25 लाख की फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट से। और इनिशियल फेजेस में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन करो या फिर आप एंटरप्रेन्योर बनो। इनिशियल स्टेजेस में हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है। जैसे छोटा बच्चा बेबी स्टेप लेता है, जैसे हमने शुरुआत में भी काम इतना छोटा शुरू करना चाहिए, छोटे शुरू करना चाहिए, अगर गलती हो जाए तो उसमें हमारा फाइनेंशियल लॉस कम हो। देखिए मैं पिछले 22 साल से
फॉरेन कंपनीज में काम करता हूँ, हमारा 5 साल का बजट बनता है, उसके बाद हमारा 3 साल का बजट बनता है, फिर हमारा साल भर का बजट बनता है, उसके बाद हमारा मंथली बजट बनता है, और हर 3 महीने के बाद में हम लोग साल भर का बजट, 3 साल का बजट, 5 साल का बजट इसमें रिवीजन भी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं उसके बारे में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, या आप जो स्टार्टअप कंपनी शुरू करेंगे या जो आप अपनी कंपनी शुरू करोगे तो उसमें एक अच्छा एडवाइजर आपको फाइनेंशियल लेवल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कैश फ्लो बहुत जरूरी है। आप मार्जिन कितना कमा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बिजनेसेस में मार्जिन ज्यादा होता है, कुछ बिजनेसेस में मार्जिन कम होता है, कुछ बिजनेसेस में टर्नओवर ज्यादा होता है, कुछ बिजनेसेस में टर्नओवर कम होता है। जैसे मैं पेट फूड का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आने वाले समय में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो आप पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैट फूड है, डॉग फूड है, फिश फीड है, क्योंकि घरों में आजकल लोग एक्वेरियम रखते हैं, तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। ये लो वॉल्यूम बिजनेस है, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप कैटल फीड का बिजनेस शुरू करोगे तो इसमें मार्जिन 4% से ज्यादा नहीं है। आप पोल्ट्री फीड का बिजनेस शुरू करोगे तो इसमें मार्जिन 2% से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप एनिमल फीड सप्लीमेंट का बिजनेस चालू करोगे तो इसमें मार्जिन 10% से लेकर 100% तक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीजें जरूरी है। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हमेशा मिलती है। आपके दिमाग में आइडिया हो तो जरूरी नहीं कि फैक्ट्री आपने ही डालनी चाहिए, आप फॉर्मुलेशन बनाइए प्रोडक्ट का, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से उस फॉर्मुलेशन को मैन्युफैक्चर कर लीजिए और फिर उसको बेचना शुरू कीजिए। सेलिंग एंड मार्केटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में पहले 3 साल आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ के आसपास पहुंचता है तब आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही बात एनिमल फीड के मैन्युफैक्चरिंग में भी है। अगर आप पोल्ट्री फीड बेचना चाह रहे हैं, आप डेयरी फीड बेचना चाह रहे हैं, बिहार में फ्लोटिंग फिश फीड बेचने के लिए काफी अच्छा स्कोप है। तो आप बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके देगी, क्योंकि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया तो इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ सेलिंग और मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो कुछ लाख रुपए में ये काम हो जाता है। यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इतने कम अमाउंट में भी आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अभी तो कोरोना के चलते हुए होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद में ये बिजनेस फिर से शुरू होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें ब्रेक इवन पीरियड बहुत कम है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खुद का लगाते हैं, आप डेयरी फार्म खुद का लगाते हैं, आप पोल्ट्री फार्म खुद का लगाते हैं, तो उसमें ब्रेक इवन पीरियड जो होता है वो 5 से 7 साल का होता है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपके पीछे एडवाइजर की टीम अच्छी होनी चाहिए। और हमारे डॉक्टर नित्यानंद पाठक सर आईवेरे में जो थे वो हमेशा कहते थे कि जो बच्चा रोएगा उसको ज्यादा दूध मिलेगा। आप जितना ज्यादा प्रश्न पूछोगे उतना ज्यादा आंसर आपको मिलोगे। आप कहोगे कि मैं बैठा रहूंगा तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, एक्सट्रोवर्ट बनो, पूछो, बात करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो लोगों के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप क्यों दुखी हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं, ना घर वालों के पास टाइम है, ना दोस्तों के पास टाइम है। दिनेश, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑकर इफ यू वांट टू जॉइन प्राइवेट सेक्टर आफ्टर BVSC ओनली।
देखिए, बीवीएससी करने के बाद में यू आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। और आप बीवीएससी करने के बाद में आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां पे आपको ट्रीटमेंट करनी है। प्राइवेट सेक्टर आप देखेंगे कि पोल्ट्री सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए लिमिटेड वैकेंसीज है। जैसे मिल्क कोऑपरेटिव्स है, प्राइवेट डेयरीज है, ये लोग कुछ वेटनरियंस लेते हैं कि जो ट्रीटमेंट करते हैं। तो एज अ बीवीएससी आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपका मेन काम जो रहेगा वो डिसीज डायग्नोसिस, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, ये होगा। आप जब मास्टर डिग्री करते हैं तब आप क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निकल सर्विसेज, R&D, इन सब चीजों में आप काम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ना आपको मास्टर डिग्री करने की आवश्यकता है, ना आपको MBA करने की आवश्यकता है। आप बीवीएससी करने के बाद में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप खुद का फार्म शुरू कर सकते हैं। या और मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्टिमोनियल इकट्ठा कीजिए, सक्सेस स्टोरी इकट्ठा कीजिए। आप कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले कम से कम 5 से 10 सक्सेस स्टोरीज को विजिट कीजिए। फेल्यूर स्टोरीज जो आपके एरिया में हुई है या जो आपको पता है, आप उनके बारे में भी स्टडी कीजिए कि वो क्यों फेल्यूर हुई है। हमेशा लैक ऑफ फोकस ये मेन रीजन होता है फेल्यूर के लिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, हाँ सर, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। हाँ हाँ, तो बेसिकली क्या है कि टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज, जैसे जो इंटर्नशिप में स्टूडेंट अभी है आपके, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप फील्ड में जा रहे हो तो आप सक्सेस स्टोरीज इकट्ठा करके बासु को दे सकते हैं, और इस सॉफ्ट कॉपीज इसकी रह सकती है। तो जो स्टूडेंट आपके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो ये डाटाबेस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी स्टार्ट पेट फूड बिजनेस मार्केटिंग एंड सेलिंग। मैंने अभी पेट फूड के बारे में आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट सर्वे। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आपके कस्टमर कितने हैं। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। जो मुंबई में रिच क्लास है वो इंपोर्टेड पेट फूड खरीदता है, लेकिन आप देखेंगे काफी मिडिल क्लास फैमिली भी पेट फूड घर में रखती है, तो वो 1200 रुपए 2000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करेगी महीने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बनाया हुआ खाना भी खिलाते हैं और उसके साथ में पेट फूड भी देंगे। जहां हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रही है वहां पे पेट फूड पेनिट्रेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंज्यूमर का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग क्यों सक्सेसफुल हुई, क्योंकि पोल्ट्री फीड का पेनिट्रेशन 100% हुआ। डेयरी फार्मिंग क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि आउट ऑफ 85 मिलियन मेट्रिक टन ओनली 10 मिलियन मेट्रिक टन कंपाउंड कैटल फीड यूज होता है। बाकी बचा हुआ आज भी रॉ मटेरियल फार्मर खिलाता है और वो बैलेंस फीड नहीं होता। वही पेट फूड की बात है। पेट बिजनेस ये इमोशनल बिजनेस है। इसमें इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कंज्यूमर से बात करना, मार्केट सर्वे से बात करना, जो कंपनियां ऑलरेडी पेट फूड बेच रही है उनके साथ 6 महीना 1 साल काम करना, ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वुड यू हेल्प टू रेज फंडिंग वाया इन्वेस्टर एज आई हैव रजिस्टर्ड माय स्टार्टअप incubated by BR Venture Park and it is agriculture based startup। आप मुझे डिटेल ईमेल कर दीजिए, मैं आपको करेक्ट वेंचर कैपिटल फंडिंग एजेंसी से लिंक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सानू से है। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ एंड फ्रॉम वेयर वन कैन हायर लैंड फॉर एनी स्टार्टअप और टू एस्टेब्लिश फार्म। देखिए, जमीन आपको कोई नहीं देता और जमीन के बेसिस पे बैंक लोन भी नहीं देती है। तो जमीन तो आप लीज पे ले सकते हैं। अगर आपके पास में पुश्तैनी जमीन नहीं होगी
तो आप जमीन लीज पे ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आप आपके एरिया में अगर मिल्क प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, पोल्ट्री प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, फिश प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो आपके एरिया में जाइए, 20, 50, 100 फार्मर इकट्ठा कीजिए, उनको सारा ट्रेनिंग दीजिए कि अच्छा फार्मिंग कैसे हो पाएगा, उनका प्रोडक्ट लीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए, मार्केट में बेचिए। एज अ वेटरनेरियन वी शुड नॉट गो इनटू फार्मिंग डायरेक्टली। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लैंड लीज पे ले सकते हैं, लेकिन लीज पे उसका किराया कितना पड़ेगा, पूरा बिजनेस प्लान आपको बनाना पड़ेगा। आप जो बिजनेस बनाना चाहते हो उसका पूरा बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। लैंड आपको लीज पे लेना चाह रहे हो तो 10 साल के या 20 साल के लीज पे लेना पड़ेगी, लॉन्ग टर्म लीज पे लेना पड़ेगा। आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लैंड भी लीज करने के लिए गवर्नमेंट ने भी रूल्स में चेंजेस किए हुए हैं, तो आप उसका स्टडी कर सकते हैं। That's all. I think all the questions have been taken by Dr. Bhosle, and time is also coming to close. So I take this opportunity to once again thank Dr. Bhosle for sparing his time and for volunteering to interact with our students and faculty, and also to for having chosen this topic on entrepreneurship and career opportunities in private sector. So as Dr. Bhosle has covered all the aspects, he has rich experience. You can see the kind of exposure Dr. Bhosle has. I have seen him grow from an MSc student, MBSc student in '92 to this stage, and we are in touch since he joined us as a student. So that's what is important regarding linkages. I always appreciate the kind of linkages he has maintained with all the faculty, all the friends, his seniors, his juniors, and wherever he interacts, wherever he goes. He has changed many companies, many organizations, and he has held different positions in different bodies, voluntary organizations or NGOs, which is very important to put forth your vision and put forth your to learn more about the situation in the country, or to interact with people who matter. So many insights have been given. Dr. J.K. Prasad is a good friend of Dr. Bhosle, so he will take up some key points or whatever suggestions he has given regarding library and arrangement of more lectures from technology business incubator heads of NDRI and IVRI. In fact, I was on the committee which initiated the NDRI technology business incubator. I had a proposal in hand and visited the Department of Science and Technology on Mehrauli area, Delhi, in the DST headquarters, and pursued the matter for the establishment of the business incubation center there. So I know people at both the places, and Dr. Prasad also knows all of them. So it becomes a little easy when you know people. Otherwise also we can involve more people where we have never met before. So this is not a hurdle, but I was just talking about the advantage. So I also thank all the students for showing up